Hello student, I am Raju Jaswan. Today our topic is the velocity time graph. So let's start. To draw the velocity time graph, velocity of the body is plotted along the y-axis and time taken by the body is plotted along the x-axis. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम टाइम रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग हम वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे. देयर आर डिफरेंट केसेस in which we will see the velocity time graph. First, velocity time graph for a body moving with a constant velocity. When a body moves with constant velocity, that is, its motion is uniform and its velocity does not change with time. ओके यदि बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा. ठीक, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी which is moving with a constant speed as shown in the figure. Okay, बॉडी जो है 8 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ओके, टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्पीड में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं. 1 सेकेंड पे भी स्पीड देखा गया, वेलोसिटी सॉरी देखा गया, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, 4 5 6 हर एक सेकेंड पे वेलोसिटी देखी जा रही है और वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड ही है. इसका मतलब उसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट, जो कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव करे उसका वेलोसिटी टाइम क्या ग्राफ क्या होगा, वो टाइम एक्सिस की क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और टाइम एक्सिस की क्या होगा, पैरेलल होगा. अब इस केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देख. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम. सिंस velocity is equal to displacement upon time, so displacement is equals to velocity into time. And here what, OA represent here velocity and OC represent here what, time. So OA into CO या OC, no problem. And it's form what, rectangle. hmm? OC, this is the length, and OA, this is the breadth. So length into breadth, this is the area of this rectangle ABCO. Okay, it means that कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो रेक्टेंगल्स की एरिया है, दिस गिव्स द डिस्प्लेसमेंट. thus the magnitude of the displacement of the body is the area under the velocity time graph. okay, अब यदि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है कि वो स्पीड टाइम ग्राफ होगा. तो इन स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस. आर यू ओके? फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ. area of rectangle OABC is OA into OC. Clear? Next, velocity time graph for uniform motion when initially the body is at rest. यानी अब हम लोग देखेंगे बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसके लिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब बॉडी इनिशियली रेस्ट पोजीशन में. Suppose initially the body is at rest, the velocity of the body at t is equals to 0 is 0. यानी यदि टाइम 0 रहेगा तो उसकी स्पीड भी या वेलोसिटी 0 होगी. वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर सच टाइप ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज शोन इन द फिगर. यहाँ पे देखिए टाइम 0 है तो इस वेलोसिटी 0 हुआ. अब टाइम इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है. ओके, तो velocity time graph of the body having a uniform motion initially at rest is a straight line passing through the origin have a constant slope. यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा. अब एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. चेंज इन वेलोसिटी मीन्स ए बी अपॉन ओ बी. ए बी इज v2 minus v1 because v2 this is the velocity at a and v1 this is the velocity at b. okay, and t1 this is the velocity at o and t2 this is the t1 this is the time at o and t2 this is the time at b. so v2 minus v1 upon t2 minus t1.
or v2 minus v1 is represent delta b and t2 minus t1 represent delta t. Okay, so here in case of slope, this is the what, AC upon OC, this is upon, this is represent here slope, and slope indicate here acceleration. And next, how to calculate the displacement in this case? The calculation of magnitude of displacement. The magnitude of displacement is what? Area under the velocity time graph. So in this case, the region is what? Triangle OAB or OBA. Okay. So area of triangle is what? Half into base into height. And OB, this is the base, and AB, this is the height, and half OB into AB, and OB is what? This is the, here the time is what? T1, and this time at the B at time is T2. So T2 minus T1, or AB in the place of AB was V2 minus V1. Okay. Next है velocity time graph for uniform motion when initially body is not at rest. यानी बॉडी इनिशियल यानी t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी की स्पीड जो है 0 नहीं है. तो अब इनिशियली मान लेते हैं बॉडी की जो स्पीड है वह 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और सच टाइप ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज शोन इन द फिगर. तो यहाँ से 2 से क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन पास करेगा. ओके, next velocity time graph when the velocity of the body decreases uniformly to 0. Suppose the body is moving with a constant velocity at t is equals to 0. The velocity time graph for this type of motion is shown in. यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज हो रहा है, स्पीड में या वेलोसिटी में डिक्रीजमेंट हो रहा है, और वेलोसिटी डिक्रीज करते एक ऐसा टाइम आएगा जब वेलोसिटी 0 हो जाए. 0 हो जाएगा तो वो टाइम एक्सिस पे जाकर मीट करेगा. ओके, तो इस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होगा. नेक्स्ट केस है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर. यानी नॉन यूनिफॉर्म कभी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, कभी डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में. Okay, and the next point is the equation of motion. This is most important. We will discuss the next video. Thank you.